अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हजरात, खुश आमदीद है आप लोगों का सबका हमारे आज के शो दो मस्ताने पर, जो कि स्पॉन्सर किया है सिने ड्रीम्स मीडिया कंपनी लिमिटेड ने। अच्छा कुरैशी साहब, Mm-hmm. I know usually we keep it very light on our show, We do. a little bit of comedy, a little bit of हंसना हंसाना, Yeah. लेकिन आज माहौल जो है कुछ उदास है, गंभीर गंभीर। हाँ, गौतम गंभीर की तरह। गौतम गंभीर की तरह. लेकिन jokes apart, today when I picked up the paper, and when I say picked up the paper, I picked up my Electronic. iPad. Yeah. Yeah. I still read the paper, by the way. I just wanted to let you know. हाँ, तो तुम तो हो ही old school. Neanderthal. Old school भी कहते हैं कि ये old school है. Caveman हूँ मैं, caveman. तो सिवाय दुख भरी दास्तानों के और तकलीफ से भरपूर कहानियों के और कुछ नजर नहीं आता. Wherever you look, whether it's in the West, in the East, in the Middle East. Oh, now I know why it's called the Middle East, because it's in the middle. Acha. Right. Yeah. That was why it was called Middle East. Yeah. Bulb on ho gaya mere ye piche chand. Eureka. I got it. That was a eureka moment. Bahral, I don't know if you heard, matlab you must have heard, but I don't know if you heard कि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले, एक नताशा इकबाल जो लड़की हैं, खातून हैं, she ran someone over, killed a man, a pedestrian, or I think he was on a bike. बहरहाल वो तो चला गया, लेकिन now because this woman Natasha Iqbal is well connected in terms of her family business, उनके जो शौहर हैं, क्या नाम है इनका यार, Danish Iqbal is the owner of or chairman at Gul Ahmed Energy Limited, one of the biggest metro power groups in Pakistan. He owns a lot of other companies. His wife Natasha जो है, the one who ran and killed a man, is CEO and on the board of directors of 9 companies. 9 companies. 9 companies. तो ये आप ज़हन में रखें कि 9 कंपनियों की मालिकन हैं, वो CEO हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हैं, लेकिन जब उनकी क्या कहते हैं असेसमेंट हुआ उनके जहन का, तो उनके नतीजा ये निकला कि she's उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है, तवाज़ुन, हाँ बिल्कुल टेढ़ा. हाँ. तो मैं भी यही कहता हूँ यार कि इसमें 2 बातें हैं. जी. पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल से ये समझ रही थी कि ये दुबई में है. ये दुबई में, और दुबई में तो शेख जो हैं वो अपने आराम से अपने किसी को भी उड़ा दें, doesn't really make any difference, especially if it's Pakistan. Make it to the news. It doesn't. That's a very normal thing. So maybe she thought she was Dubaian, local. Yeah. That's one thing. Number 2, when the doctor came out and assessed the fact that she is a little bit cuckoo, maybe it's just that comes, you know, it's the nature of the beast. When you're the owner of 9 different companies, you probably are cuckoo. Yeah, that's a good point. अगर आप 9 कंपनियों के मालिक हैं, वैसे तो मैं तो अगर एक कंपनी का भी मालिक होता तो शायद मेरा दिमाग घूम चुका होता. घूम जाओ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही. 9 कंपनियों के मालिक. I mean, you lose all sense of what reality or what the ground reality is when you're in that kind of an environment or in that kind of a ether. Yeah. I mean, you can imagine what her day would be like, going to 9 different companies, attending, I don't know, 2 meetings at each company. That's 18 meetings in a day. She's too big for that. She gets her advisors to go to those companies and do लेकिन those मैं तो कह रहा meetings. हूँ कि ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ सकता है जब आप निकलेंगे मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स, फिर आप शॉपिंग करने जाएंगे, फिर आप पेरिस चले जाएंगे लंच करने, फिर लंदन में आपकी चाय होगी, रात का सफर आपका वहाँ शायद स्कॉटलैंड में होगा. तो जब आप घर वापस लौटेंगे रात में, तो you're frustrated, तो जो भी आपको दिखेगा सड़क पे आप उड़ा देंगे उसको. उड़ा दो यार, क्या यार, your life is very difficult. It's a very hard life. Exactly. Imagine traveling all over the world, meetings all day, shopping all day, just imagine eating out all day at luxury imagine restaurants. the parishani and the stress level when you have to eat lunch in Paris then have dinner in Wales. You know, it's a difficult life. It's a difficult life. So मैं तो कहता हूँ एक उड़ाया तो शायद कम ही उड़ाया. Bharaal, no, that's funny. We're trying to keep it light again. Lekin if you guys think this is bad, let us give you the ugly.
और ये इतना अगली है कि और ये आप सब सुन तो चुके होंगे कि जो इंडिया में हुआ है, वैसे तो ये रोज बरोज की बात है इंडिया में, स्पेशली इन दिल्ली, व्हिच इज नाउ डब्ड द कैपिटल ऑफ द रेप कैपिटल ऑफ द The वर्ल्ड. world, basically, yeah. But this has crossed all limits, man. I know we were going to talk about rape in general in India and Pakistan. लेकिन दो कहानियां इस वक्त क्या कहते हैं यार, वो सरेआम हैं. Saryam, yeah. सरेआम हैं. Let me start with a smaller one. Not because किसी का रेप होना और किसी का मर जाना, you can't compare the two. मतलब किस दो लोगों का मरना और रेप होना, they're equally bad. लेकिन when I say smaller is because the case apparently is made Exactly. out to be small. It's made out to be small. पाकिस्तान में एक 5 साल बच्ची का रेप हुआ. I'm not sure, मैं, please don't quote me. I don't know if she's still alive or not. लेकिन बहुत शोर मच रहा है, मचना भी चाहिए. पर ये सिर्फ आज की बात नहीं है. ये पाकिस्तान हो या इंडिया हो, खास करके दोनों जगह this has become an everyday thing, an every hour thing almost. हर थोड़ी देर बाद कहीं किसी का रेप हो रहा होता है. So that's the smaller story. The bigger story obviously is the Indian woman, the doctor, जिनको based on her postmortem report, उनका जब रेप हुआ, and when they did the tests, I can't even speak, to be honest, right now. Yeah, I don't know if I that's can't even speak. The point is that When they, yeah, practically while she was alive, she was basically mutilated. Mutilated, उनकी टांगे तोड़ दी गई. टांग तोड़ दी गई यार 90 degrees के एंगल के ऊपर, मतलब कोई सोचें आप जरा. And I know, I hate to say this on camera, लेकिन the amount of semen found in her body equates to at least 20 people, men, raping her. और ये कोई 4-5 दिन के गैप से नहीं हुआ. ये एक रात में, within an hour or two, this was done. Repeatedly raped. And then I don't know if she committed suicide. There's a lot of doubt. Yeah, there's a lot of कहा जा रहा है controversy over that. उन्होंने खुदकुशी कर ली. खुदकुशी, लेकिन उसने बाकायदा उस बेचारी ने एक सेल्फी बनाई ये दिखाने के लिए. हाँ. और यार ये अगर तुम खुद सोचो यार, वो सेल्फी किस हाल में होगी वो, जो उसने एक सेल्फी बनाए ये दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि भाई मैं सुसाइड नहीं कर रही, बल्कि आई एम प्रोबब्ली गोना डाई इन द नेक्स्ट लिटिल व्हाइल. एंड शी डिड. लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि in that condition, even if she decided to just take her life, yeah, I know it's not my judgment, लेकिन उस हाल पे पहुंचने के बाद कौन जीना चाहेगा? कौन जीना चाहेगा? मतलब आप, someone gets raped once by one person, that is bad enough, but getting raped by at least 20 people, जो भी मोटिव हो, revenge है. लेकिन यार वो सिर्फ रेप की बात नहीं थी. It was the physical abuse that she suffered. Yes. The assault, the actual Broken physical bones. broken bones, lacerations. मेरे ख्याल से ये जो है ना, it's not just physically demeaning or humiliating, it becomes a mental thing too. And when you've already been raped, yes, over with 20 men, and you've been physically assaulted on top of that, it's I mean, there's no way you can possibly even imagine what someone is feeling when they're going through that, unless you're that person. So मैं तो यार मेरा तो दिमाग घूम गया था यार जब मैंने ये बात सुनी. दिमाग घूमा हुआ है. मैं, I know we decided to talk about this today, but now that I am talking about it, मेरी तो वाकई हवाइयां उड़ी हुई हैं इस टॉपिक पे बात करने पे. लेकिन हमारा मुद्दा आपको ये न्यूज़ देना नहीं था, because you know the news, you've all heard it, it's all over the media, it's all over social media. बहुत बुरा हुआ. उससे भी बुरी चीज जो है वो लोगों के रिएक्शंस होते हैं. So what we decided to do is we picked up headlines and comments or reactions from certain rape cases that have taken place in the recent past, mostly in India, I'm guessing, or Pakistan. लेकिन हारून साहब जो हैं एक कमेंट पढ़ेंगे और फिर मैं उसकी हेडलाइन आपको बाद में सुनाऊंगा. तो हारून, why don't you read the first comment and then I'll tell you what the case was. Ladies and gentlemen, she must have asked for it. गौर किया आपने, she must have asked for it. तो जहन में क्या आ रहा है आपके? एक औरत आ रही है ना. Hear this out.
Jharkhand mein, a 3.5-year-old nursery student was raped by a school van driver because she must have asked for it. I know, but Abdullah, to be honest, I'm thinking that, I mean, this makes it worse. Why? Because he's not actually being serious. Whoever this person is with this quote, I'm not quoting it, but it's possible that he was being a dumbass or a smartass about it and trying to be really smart about that. Okay. No, fair enough. Maybe it is a smart-ass comment. I hope it is. Because if it's not, and I have a feeling, given the mentality of our men back home, maybe it's not even a smart-ass comment. वो वाकई में कि सोच रहा होगा कि ये एक 3.5 साल की बच्ची जिसको सही से शायद बोलना भी नहीं आता, उसने प्रोवोक किया होगा उस वैन ड्राइवर को, और वैन ड्राइवर was justified to do that. And I honestly hope, man, that it's a smart-ass comment. But even then, even then, Abdullah, it's like, you can't put lipstick on a pig, man. I mean, like, and make it look like it's something else. Yeah. You can say this all you want, that, whether it's a smart-ass comment. I think saying it as a smart-ass comment is even, I'm going to say the opposite to what you're saying. I'm saying that's even worse because they're making light of it. Exactly. मजाक उड़ा रहे हैं. Yeah, alag baat hai ki if you're already a deranged human being, then you're a deranged human being. Yeah. You can accept, you can digest that this guy's deranged. But if you're being a smartass about it, then that kind of gives you an idea of what the mindset is. Yeah. Anyway. कुछ मामलों में खामोशी बेहतर होती है क्या? मेरे ख्याल से. Anyways, read the next one. Gets better. The Delhi High Court. No, read the. Oh, you mean you're going to read that? All right. Girls shouldn't be friendly with strangers. I'm smiling. Okay. And this is after these headlines. In Delhi, High Court holds father guilty of raping minor daughter for over 2 years, calls him monster. Acha, girls shouldn't be friendly with strangers. Very strange. तो उसका जो बाप था वो stranger ही होगा ना. Stranger मतलब हो सकता है कि उनकी जो relation जो है उतनी पक्की नहीं है, इतनी tight नहीं है, तो उसको stranger. तो ऐसे बाप को तो वाकई stranger ही होना चाहिए, सिर्फ बेटी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए. दुनिया के लिए stranger होना चाहिए. He should be put on stranger island. Yes. बल्कि put क्या? दफन कर दो. दफन कर दो उसको. जिंदा वहीं पे गाड़ दो. नहीं यही it's unbelievable. Here's another one for you. हम पहले पढ़ते हैं फिर reaction तो आप लोग दीजिएगा कि girls अच्छा नहीं. I'll say girls shouldn't go out at night. अच्छा. Onlookers. Okay, this is very interesting. Onlookers film drunk man raping a woman in broad daylight. अच्छा. और फिर उनका comment था कि the girls shouldn't go out at night. Couldn't go at night. हाँ. हो सकता है उनको वो जब फिल्म कर रहे हो तो उन्होंने फिल्टर ऐसा लगाया हो कि उनको लाइट लग रही हो. They must be wearing sunglasses या कोई eclipse हुआ पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि broad daylight or at night दोनों मुख्तलिफ चीजें आती हैं. Yeah, and I really want to meet those onlookers. Yeah, what's up with these onlookers? Yeah. उसकी फिल्म बना रहे थे. How low can you get? Yeah, but Abdullah, man, I mean, this opens up a whole different can of worms, man. I know, man. I don't want to even go there, but... no, I'm talking about it from a social media perspective. Yeah, this is... ये जो पैदावार है, ये social media ही की पैदावार है. So, yeah, they're more interested in how many views that rape incident would be getting from their phone. Yeah, no, the onlookers are now celebrities, apparently. So, overnight or over day, should I say. Yeah, over day, over the hour. Over the hour. The way things go. So, I'm not a... उनकी राल टपक रही होगी, रेप होते हुए नहीं, उस पे कितने वायरल हो जाएगा ये. Oh, man, I got it. So, I have a real problem from a very fundamental belief level. That's a different topic. That's a different topic for a different day. And I was just going to say that's for a different topic for a different day. And I'll talk to Abdullah about that some other time. But we'll talk about it on here. We'll bring some social media people. Yeah, we will. I'd love to have their take on it. Yeah, but Abdullah, everyone that we bring, their eyes are just mesmerized, and there's like these little stars that are coming out of their eyes about how amazing they're doing on social media or Insta or TikTok or on Facebook. And you know how I feel about that, man. Yeah, I know how you feel. Anyways, let's go to the next one. Yep.
What are we looking at here? Okay. Oh, what was she? What was she? Oh no, that's not the one. Girls shouldn't go to bars and clubs. You know. Huh. Yeah, maybe they shouldn't, but Yeah, they shouldn't go to clubs, especially if it's the headline says teen attending religious yatra gang raped in Tamil Nadu, 7 arrested. first of all, the fact that it happened in Tamil Nadu, I find that absolutely crazy. Yeah. It's a very civilized South India is a very civilized society, man. It's a massive area, but very educated. Yeah. No, but apparently she went to a religious yatra and ended up in a bar and club. According to whoever, according to these quotes. So, that's the next one, Abdullah, the next one, what was she wearing? Go ahead and do that. Catholic bishop acquitted of raping nun in India. Yeah. What was she wearing? Were you drinking? And what were you drinking? It says, were you drinking? And then you're like, 85-year-old woman. Acha, were you? Oh, that's another one. Acha, 85-year-old woman dies after allegedly being raped in UP. 85 साल की औरत raped in UP. Were you drinking? Like, I wonder who they're asking, the rapist or the woman, the old 85-year-old woman who's no more. उससे सवाल पूछा. It's the last one. She had that's the one. She had a questionable profession. Acha? I think this is the one that we talked about. A trainee doc raped and murdered in Kolkata. Massive protest erupted. Yeah, that's the one. That's the one. But yeah, I guess, being a doctor is a very questionable profession. Yeah, it's not a very izzatdar profession, लेकिन मजाक के अलावा ऐसी न्यूज़ सुन के आज एक बच्ची 13-14 साल की जो के who aspires to become a doctor in India, and she reads this and hears this, what उस पे क्या असर पड़ रहा होगा? Now, does she still want to become a doctor? I mean, you could say that about any profession now. Ah. It just so happens to be that she was a doctor. मैं तो कहता हूँ कि ये तो हमारी society समाज जो है ना, ये जो समाज को उर्दू में क्या कहते हैं यार? हाँ, society है, society जो है, माशरा है, माशरा जो है, वो इतना मतलब गिर चुका है और इतना hopeless हो चुका है कि really you're not safe in any kind of an environment, man. You're really not. और मैं तो कह रहा हूँ यार, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि ये सब क़यामत की निशानियां हैं ये. And we're getting very close. Because there is no law anymore. मैं तो कहता हूँ अगर ये क़यामत की निशानियां तो शायद maybe we should turn them into क़यामत की निशानियां. These men the 20 guys who I think one has been arrested, लेकिन ढूंढो उन सबको और उनको बीच चौराहे पे खड़े करके don't kill them. No. They should be put through the same kind of torture that they put that poor woman. You want to know what rape's like, bud? You want to know what a rape is? How about we get not 20 guys? How about we get a mob? Yeah. On each one of you. And use some steel pipes. And use some crowbars. Some crowbars. And maybe we can put them in places where मैं तो कहूँगा ये भी बहुत कम सजा है जो जुर्म हुआ है और जिस तरह लोगों के रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं. Society as a general, as a whole, is headed towards क्या कह सकते हैं, तबाही यार. It's chaos and anarchy, man. It's chaos and anarchy. I'm sickened to my stomach, Abdullah. लेकिन I was sickened to my stomach many eons ago. Yeah. अब तो यार ये बड़ी. This is just an exclamation mark. Yeah. On that. लेकिन I'm not too surprised, especially from our people. कहाँ हम यार वो हमारे लोग जो हैं वो ये जो northeastern seaboard United States की, these university kids are in campuses, these girls are getting raped at campuses. Yeah. ये देखो जरा, ये हरकतें देखो. Anyways, कभी-कभार तुम्हें लगता है कि ये जो है ना जिसको रेप कहा जाता है, बलात्कार शायद हिंदी में कहते हैं. It's worse than murder. Because when you kill someone, you kill them physically. When you rape someone, you kill them in mentally. So many different ways. Yeah, mentally you kill someone and they can never ever recover. Actually recover from that. Yeah. तो ये जितनी भी इसको सजा मिली, किसी भी रेपिस्ट को जितनी भी सजा मिले कम है.
इनका हशर तो इंशाल्लाह वहीं होगा. बिल्कुल होगा. Bharala, we're out of time. We could sit here and talk about this, but I'm really sick to the stomach, as you Yeah. said. मुझे घिन आ रही है सोच के ऐसे लोगों के बारे में, उन रेपिस्ट्स के बारे में भी, और जो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं उन लोगों के बारे में भी. I hope they were kidding, and even if they were They're kidding, kidding, man. Even if they're kidding, Abdullah, it's look yourself up in the mirror. yeah. Oh no, अब कोई ज़रूरत भी नहीं है यार. There's no sense for them to look at themselves in the mirror, look up and down, क्योंकि they don't बेहिस बेगैरत type of people. सही कह रहे हो. मतलब आईना भी शर्मिंदा हो जाएगा ऐसे लोगों को देख के. Bharala, we'll have to take a break. Yeah, we'll be back. Yeah, we'll be back. Yeah. You know, if I were अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. चाय. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी, और थिक कड़क चाय थी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. चाय. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी, और थिक कड़क चाय थी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. काली काली जुल्फों के धंधे न डालो. हमें बनाता न बना बुलती हवा है, बुलती हवा. बूंदे भी तो आए नहीं बाज जहां. Thinking of buying or selling real estate? Call us today.
We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में खो जाएं हम। ये मेरा ख्याल है डायलॉग सब ने बोला। हाँ जी, वी आर बैक विद DDLJ. Oh my God, after a very long time. DDLJ released in 1995. आदित्य चोपड़ा की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू। 1000 हफ्ते मराठा मंदिर में चली। शोले का रिकॉर्ड तोड़ दिया सिनेमा थिएटर्स के लिए। हाँ जी, आज भी जब आप सलमान, सॉरी माय अपॉलॉजीज, आई थिंक सलमान वुडंट माइंड एंड नाइदर वुड शाहरुख, बट शाहरुख खान को आज भी आप देख सकते हैं बैंजो पकड़े हुए ऑन द ब्रिज, पीछे रख के पलट पलट पलट। और एक बड़ी अच्छी कहानी पलट के बारे में हमने सुनी थी उन्हीं के इंटरव्यू में, कि जब वो बैठे हुए थे, जब ये फिल्म देख रहे थे और उनके साथ में मेरे ख्याल है वो एक बहुत बड़े कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बैठे हुए थे, तो उन्होंने शाहरुख खान को जब ये सीन देखा कि वो कह रहे हैं पलट पलट पलट, उन्होंने उनको कहा कि ये फिल्म नहीं चलेगी, ये फिल्म नहीं चलेगी। इट वॉज अ वेरी फनी मोमेंट। पर उसके बाद पलट पलट पलट। मेरा ख्याल है आज की डेट में ऐसा कोई लड़का हिंदुस्तान में उस टाइम की जनरेशन का लेके आज तक, जो मैं उसी जनरेशन का हूँ, जिसने आज तक कभी अंदर, ये नहीं कि शायद जोर से लाउडली बोला हो किसी सड़क के बीच में पलट पलट ओए पलट, नहीं ऐसे नहीं होगा, मन में कभी सोचा होगा यार पलट, लड़की ने अगर पलट के देख लिया तो मतलब मुझसे प्यार करती है। इस टाइप का एक सिंबॉलिक जेस्चर मेरे ख्याल है DDLJ ने काफ़ी फेमस कर दिया था। ऑफ कोर्स हमारे इनके गाने, आई थिंक द सॉन्ग्स इवन टुडे, आप इनका म्यूजिक आप रेडियो पे सुनते हैं, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, टेक्स यू बैक। तो क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, आप देखेंगे आज DDLJ अगर थिएटर में लगी यहाँ पे दोबारा नॉर्थ अमेरिका में, would you go watch DDLJ? Would you take your kids to go watch DDLJ? क्योंकि जो हम जनरेशन के हैं DDLJ के वॉचर्स, जो जब लॉन्च हुई थी, जब रिलीज हुई थी, अब सबके मेरे हिसाब से बच्चे होने चाहिए। कईयों के तो बच्चों के बच्चे भी हो गए होंगे, मेरा तो बच्चा है, बच्चों के उसके बच्चे का बच्चा कभी ना कभी फ्यूचर में हो ही जाएगा, और तब भी DDLJ मेरे ख्याल से चलती रहेगी और तब भी लोग एंजॉय करते रहेंगे। अमरीश पुरी का गुस्सा, मोनिका बेदी की शरारत, और हमारे अर्चना पूरन सिंह जी के हस्बैंड परमीत सेठी, हाँ जी परमीत, हाउ कैन आई फॉरगेट परमीत सेठी, द पंजाबी शेर बॉय दैट ही गोज, शाहरुख खान गोज अगेंस्ट फॉर द वुमन ही लव्स। और कैसे मेरा ख्याल है एक इम्पैक्ट हुआ था शाहरुख खान का, जो एक पर्सोना इससे पहले जो आया था एक एंग्री यंग मैन का, वो एंग्री यंग मैन को पैशन में डाल दिया। ही बिकेम पैशनेट एंड इट शोड हिज लव। और वही एक चीज़ मेरा ख्याल है काफ़ी जो व्यूअर्स थे, लोगों ने जिन्होंने फिल्म देखी, और काफ़ी लोग जो एस्पायर हुए, उनको लगा कि शायद शाहरुख खान का थोड़ा सा एग्रेशन उस प्यार में लाएं तो शायद वो प्यार हो जाएगा। काफ़ियों के लिए वो बैकफायर भी हुआ था। हाँ जी, हम सारे उनमें से एक थे जिनके लिए वो बैकफायर भी होता है। वो शाहरुख खान, ये मेरा ख्याल है, जो बड़ी खूबसूरती से और बड़े आराम से एक लड़की की आंखों में आंखें डाल के देख सके, बोल सकता है कि बस मैं तुमसे ही, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सिमरन या फिर जो भी हो, जो भी एक्ट्रेस में, तो ऑफकोर्स सिमरन ही थी। और सिमरन इसके बाद मेरा ख्याल है घर में उसके बाद एक सिमरन भी पैदा हो गया। जो सिमरन ऑलरेडी थी वो सिमरन राज की होगी, वो सिमरन राज को ढूंढने लगे। DDLJ का जो एक ट्रेंड था सिनेमा और फिल्म्स के अंदर भी कंटिन्यू रहा। बचना है हसीनों में जो शुरू का एक सीक्वेंस है, अगर आपने फिल्म देखी हो, रणबीर कपूर और मनीषा लांबा का एक सीक्वेंस उसमें है, उसका नाम सिमरन होता है और वो यूरो रेल पे होती है, ढूंढ रही होती है अपने राज को। राज कहाँ से आया? राज DDLJ से आया। सो हमारा वही सवाल था कि आप दोबारा देखेंगे कि नहीं। वी वुड लव टू हियर बैक फ्रॉम यू। हमारा ईमेल एड्रेस, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे हैं, हमें बताइएगा कि इफ़ यू वुड वॉच DDLJ अगेन, और अगर आप दोबारा देख भी लें और हमें फीडबैक दें कि आज की डेट में आपको आज के रोमांस, जो रोमांटिक फिल्म्स जो आजकल आ रही हैं, उनसे जो एक कंपैरिजन आप देखेंगे DDLJ का, जिस तरीके से उसमें एक रोमांस और एक प्रोसेस फॉर रोमांस, टू अर्न योर रोमांस, टू गेट योर रोमांस दिखाया गया, विच इज़ के मेहनत करनी पड़ती है, कुछ आसानी से नहीं मिलता। यू हैव टू वर्क रियली 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 हार्ड इन ऑर्डर टू गेट द लव दैट यू want to achieve and to prove that you're worthy of earning that love. उसने, शाहरुख खान ने इसमें बड़े पापड़ बेले हैं, आपने देखा, वो वेटर बना हुआ है, कपड़े धो रहा है, अनाज उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों?
क्योंकि वो सिमरन से इतना प्यार करता है कि उसको सिर्फ सिमरन के साथ रहना है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और वही DDLJ ने एक इम्पैक्ट हमारी फिल्मों में, हमारे सिनेमा की जो लव स्टोरीज़ में क्रिएट किया और उससे हमारी अपनी लाइफ में वो चीज़ कंटिन्यू रही। जब रिलेशनशिप्स और कहानी आप सुनते हो, कार्ड्स आप देखते हो, आर्चीज़ के जितने वो गिफ्ट्स वगैरह आते थे, ये सारे जो इम्पैक्ट्स और सारी जो एक रोमांस और लव को एक्सपोज करना और उससे शर्माना नहीं। एक टाइम पे वो था जब मैंने कहानियाँ सुनी है कि मेरे जो दादा दादी थे उन्होंने एक दूसरे की शक्ल तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने एक दूसरे के जूते देखे थे, सिर्फ जूतों के बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम शादी कर लेंगे, दैट्स इट। He liked her shoe size, she liked his shoe size, and they were sorted. So obviously in theory there must be some method to the madness because they obviously were married forever and happily. But कैसे वो trend change होते होते evolution आया, और DDLJ being such a big part of that evolution of being able to without any hesitation, without any fear, किसी डर नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए आपके मन में। अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप उस प्यार को पाना चाहते हो, और उस प्यार को आप कैसे पाओगे जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो। तो DDLJ में शाहरुख खान हर हदें तोड़ के लंदन से सीधा पहुंच गया पंजाब, घंटी लेके बोलने के लिए कि सिमरन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो देखिए DDLJ, अगर देखी नहीं है, अगर आपने ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल ऐसा कोई अपना साउथ एशियन भाई बहन दोस्त यार है नहीं जिसने ना देखी हो, पर अगर देखी भी हो एक बार फिर देख लो और हमें बताओ। Let us know how you liked it. We'd love to hear from you, and we'd love to make sure we share your reviews back with, of course, the Yash Chopra team, because I'm sure they'd love to hear it. DDLJ is a historic film and it's receiving constant appreciation from the world. So देखिएगा ज़रूर। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ मैं बोलता जा रहा हूँ, एक्चुअल फिल्म का नाम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान का जो the romance is just in the name and in every part of the film. शुरुआत से लेके आखिर तक आपको वो मोहब्बत नज़र आएगी जो आज हिंदुस्तान के हर इंसान में आपकी उनकी आंखों में आप देखते हो, जब वो कोई भी प्यार उनकी आंखों में होता है। So thank you so much for joining me on Filmy Safar. DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखिएगा ज़रूर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। Thank you so much for joining me on Filmy Safar. I'm going to send it back to the boys. Thank you so much. Have a great night, have a great afternoon, have a great morning. Namaste, Allah Hafiz, Shabba Khair. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंबर खान और मैं फिर से हाजिर हूं अपना ज़बरदस्त सेगमेंट लेके जिसका नाम है मेरा प्यारा पाकिस्तान। मेरे लास्ट सेगमेंट को लोगों ने बहुत पसंद किया, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने ये कहा कि इस किस्म की मुस्बित बातों को जो पाकिस्तान के बारे में हैं, जो पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हम मीडिया में बहुत सारी नेगेटिविटी देखते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जो सलाहियतें मौजूद हैं, जो यहाँ के लोगों में एबिलिटीज़ मौजूद हैं, उनके बारे में भी जिक्र करना चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। और सब ने बहुत सराहा और सब ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है जहाँ पर हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने रख सकें और दुनिया को अपनी मतलब पाकिस्तान में मौजूद खूबसूरती से, यहाँ की खूबियों से दुनिया को रोशनास करा सकें। तो इसी लिहाज से मैं आज भी आपके लिए पाकिस्तान के ही बारे में बहुत ही ज़बरदस्त सी बात लेकर आई हूँ। और इस बात के बारे में भी हर कोई जानता है, हर कोई इस चीज़ को पहचानता है, और बल्कि पाकिस्तान को इसी के नाम से पहचाना जाता है। हमने बचपन में बहुत सुना K2 का पाकिस्तान, तो आपने ये स्लोगन तो सुना होगा, लेकिन K2 के बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि K2 जो है पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है, पाकिस्तान का एक अहम असासा है और पाकिस्तान को दुनिया में मुनफरद रखता है। और K2 जो है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ के मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के तमाम कोहे पैमानों के लिए, माउंटेनियर्स के लिए एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन है K2 में। यहाँ पे हर साल लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं, K2 को सर करने की कोशिश करते हैं, और इस सिलसिले में बहुत अरसे से काम हो रहा है और बहुत जो माउंटेनियर्स हैं वो K2 में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और K2 जो है वो पाकिस्तान को दुनिया में एक मुनफरद और एक अहम मकाम दिलाता है। तो मैं लेके आई हूँ K2 के बारे में चंद अहम मालूमात। यकीनन आप
में से बहुत सारे लोग जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो जानते भी होंगे इस मालूमात के बारे में, तो उनकी जो है मेमोरी थोड़ी रिवाइव हो जाएगी, उनकी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। और जो लोग नहीं जानते, जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो बच्चे हमारे यहाँ कनाडा में रहते हैं, उनको नहीं पता पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में कितनी जिनको एक्सप्लोर करने की और जिन पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन बच्चों के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल होना चाहिए और उन बच्चों को, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, बल्कि बताना भी चाहिए कि पाकिस्तान में किस किस्म की ऐसी मतलब अजूबात हैं, किस किस्म के ऐसे तारीख़ी मकामात हैं जो मैंने अपने लास्ट सेगमेंट में जिसका जिक्र किया था, सिंध की अजीम दीवार, रानी कोट किला और छांगा मांगा का जंगल। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार तारीख़ी मकामात मौजूद हैं जो देखने के काबिल रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पे अपने बच्चों को कैनेडियन सोसाइटी में ग्रो अप कर, हमारे बच्चे मतलब यहाँ पे हमें देखते हैं, पाकिस्तान को सुनते हैं, पाकिस्तान का नाम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की मालूमात की जो है वो थोड़ी कमी है, तो उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो चले K2 के बारे में चंद हकाइक शेयर करूँगी मैं आपके सामने और चंद मज़ेदार बातें कि K2 पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा पाकिस्तान का माउंटेन है, लेकिन दुनिया में ये सेकंड नंबर पर है माउंट एवरेस्ट के बाद, और ये कराकोरम रीजन का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, इसीलिए इसे K2 कहा जाता है। इसको 1866 में डिस्कवर किया गया था और ये कराकोरम रीजन का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, और ये ना सिर्फ कराकोरम का बल्कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ये तकरीबन सतह समंदर से 8,611 मीटर की बुलंदी पर कायम है, और एक कोहे पैमा जिसने 1953 में इसको सर करने की कोशिश की थी, जिसका नाम जॉर्ज बेल था, ये एक इटालियन कोहे पैमा था। इसने इस K2 को जो है डेडलिएस्ट माउंटेन के नाम से मतलब उसको डेडलिएस्ट माउंटेन का खिताब दिया है। वो अपनी किताब में ये लिखता है कि जैसे जैसे आप इस माउंटेन को सर करने जाते हैं, ऐसा लगता है कि माउंटेन आपको आपकी कभी भी जान ले लेगा। तो इससे इसके जो बहुत सारे निक नेम हैं, ना सिर्फ इस जॉर्ज बेल ने बल्कि जितने भी कोहे पैमा हैं जिन्होंने इसको सर करने की कोशिश की है, वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक माउंटेन है, और ये जो है एक तरीके से जो है मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे आबो हवा के लिहाज से भी इसका जो रीजन है, इसका जो लंबाई है वो इतनी ख़तरनाक है, और इसमें चढ़ने के लिए जो सहूलतें हैं अगर आपके पास प्रॉपर ना हो तो आपका जो मतलब अगर आप वहाँ पे सही से तैयारी के साथ नहीं जा रहे तो ये जो है आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ के मुताबिक या हिस्ट्री के मुताबिक हर साल 4 में से एक कोहे पैमा जो है K2 को सर करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठता है, और इसलिए इस K2 को डेडलिएस्ट माउंटेन कहा जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे निकनेम हैं, जैसे कि किंग ऑफ माउंटेन भी इसे कहते हैं और माउंटेन ऑफ माउंटेन भी कहते हैं। तो ये माउंटेन दुनिया के 5 ऐसे माउंटेन में शुमार किया जाता है जो कि ख़तरनाक ही मतलब ख़तरनाक मतलब डेडलिएस्ट हैं और बहुत ही ख़तरनाक हैं और जानलेवा साबित होते हैं वो माउंटेनियर्स के लिए। इसको सर करने की कोशिश में जैसा कि मैंने आपको बताया 4 में से 1 लोग जो है वो यकीनन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो K2 की जो ये जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा K2 के बारे में बहुत सारे मालूमात हमारे सोशल मीडिया पे हमारे मतलब हिस्ट्री की किताबों में मिलेगी, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग हैं जो माउंटेनर्स हैं वो K2 में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इसके बारे में लिखते रहते हैं। बहुत सारे जो इटालियन जर्मन माउंटेनर्स हैं उनकी बुक्स में भी K2 का जो जिक्र है वो सर फहरिस्त है। तो K2 पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है, और हमें भी चाहिए कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपने ऐसे कीमती असासे को एक्सप्लोर करें और कोशिश करें कि हम दुनिया को बताएं कि ये हमारे लिए एक बहुत अहमियत का हामिल है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम आपसे फिर इसी किस्म की दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स।
हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे। और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में, जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो, जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। Welcome back to दो मस्ताने। हम हैं आपके होस्ट अब्दुल्ला गौरी, हारून कुरैशी, मिस्टर बड़ा बिरयानी, मिस्टर कढ़ाई। आज थोड़ी गहरी और भारी कहना चाहिए, गहरी और भारी गुफ्तगू हो गई शो में। But I think it was important to bring certain things to the fore. हालांकि हंसी मजाक को तो होता रहता है यार, हालांकि दुनिया जो है, माशरा जो है, बिगड़ता चला जा रहा है, and two guys sitting in a studio cannot control that. Nope. But at least we can talk about it, vent a little bit. I think that's the important thing. As long as we've got an avenue to vent. हाँ. Anyways, हमने कहा कि शो खत्म करने से पहले थोड़ी सी हल्की फुल्की लाइट कॉमेडी हो जाए। तो उस दिन मैं एक शो, मैं भी कहूँगा कि हो जाए। Okay. मैं शो देख रहा था about dad jokes, and I know you don't like them, but I do. Oh, good God. Even though I'm a dad. Oh, jeez. मैं तो अगर जोक कहूँगा भी अच्छा भी होगा तो वो भी डैड जोक होगा। हाँ, वैसे ये सही नहीं। Sometimes, let me tell you something about Abdullah, ladies and gentlemen. Afzal and Mushtaq. When he is not joking, he can say things that will cause problems for your urinary tract. That's how funny it is. You might need an oxygen mask. That's how funny. चेतावनी है ये। It's that funny. So there's no denying the humor here. बस ये है कि जब डैड जोक्स के ऊपर हम आ जाते हैं, फिर तो मतलब फिर वो मैं क्या कहूँ। लेकिन बहरहाल आज क्योंकि गुफ्तगू काफी सीरियस थी और काफी कंट्रोवर्शियल थी, तो इसको हम कॉमेडी को भी कंट्रोवर्शियल ही रखते हैं। This whole episode might not even ever get aired. Oh shit. We've said today and what we're going to say now. Oh boy. लेकिन मैं आपसे एक पूछता हूँ एक सवाल।
First question. It's a question and answer session. First of all, how do you make an idiot say how? How? Like H-O-W? Right, just like that. Oh, thank you. Anyways, ये तो सिर्फ वो नमक डाल रहा था मैं अंडे पे. What do you call a lesbian on fire? Yeah. Hopefully we get away with this. But lesbian on fire. Yeah. Oh. Good one, right? Burning bush? What? That's a better joke. That was sorry, but I don't know. ये होना चाहिए viral. Not those guys filming those rapes. Anyhow, yeah. What do you call a lesbian on fire? Yeah. LGBTQ. But I like the burning bush one. The burning bush. What do mermaids use to wash their fins? What do mermaids use to wash their fins? इसको सोचो जरा आएगा तुम्हें आएगा अंदर से आएगा हाँ ये क्लू है ये क्लू अंदर से आएगा मतलब अंदर से आना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ अगर अंदर से आएगा तो ये तो बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन हो जाएगी यार अंदर से मतलब fins what do mermaids use to wash their fins? Steel wool? I don't know. You are on a roll. I'm on a roll today. ये बन कबाब का रोल होता है ना वो burning stool? I mean burning stool. It is getting better with every second that is passing. That wasn't even intended. Or I meant burning stool. I've heard people burning stool all the time in Pakistan and India. And burning stool. Fecal matter. हाँ तो वो तो तुम तो रोज ही नहीं वो एक्सपीरियंस करते नहीं वो तो ऑलरेडी बर्निंग हो रहा होता है जब निकल रहा होता है तो निकल के बर्न कर देता सब हाँ वो my toilet is no longer it's just we a hole. We have gone off on a tangent. This वो जा रहा है वो देखो. It is so far. So far. Different time zone. But what do mermaids use to wash their fins? What? Tide. Actually, no, the last one before we go. This is not a dad joke, but I heard this and I really like this. So hear me out. The difference between knowledge and wisdom is, so keep in mind knowledge and wisdom. Knowledge is knowing that a tomato is a fruit, but wisdom is knowing not to put it in a fruit salad. Damn. Deep. The depths. So knowledge on its own is no good. No. Wisdom ना हो ना तो knowledge आप दुनिया भर के ले आएंगे. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं है. Knowledge doesn't mean anything. Knowledge, you can tell a dog how to turn tricks. He's got the knowledge to turn tricks, doesn't he? Yeah. But he's still a dog. Not to say that dogs are like dumbasses. They're a circus monkey can have knowledge of how to jump through a fiery hoop. That's knowledge. That's knowledge. Is that wisdom? No. Wisdom is a completely different. It's a different. Something that me and Abdullah do not possess. हाँ. बल्कि मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए बल्कि नॉन मुस्लिम्स के लिए भी कुरान अगर आप पढ़ें तो there's a surah Luqman. It was about a dad giving a lot of tips to his son. But the story behind that, the backstory is that Luqman, who's not a prophet by the way, was asked by God, okay, what do you want? He was a very avid worshipper of God, बहुत नमाजी और सजदे वजदे करते थे. So God offered him, what is one thing that you would want from me? He could have asked for anything, but the thing he asked for was wisdom. Really? Wisdom से बड़ी कोई ताकत नहीं है. पूरी दुनिया का इल्म आप इकट्ठा कर लें, wisdom नहीं होगा ना. और ये wisdom जो है अब्दुल्ला ये तालीम से या किताबों से हासिल नहीं होता ये. नहीं ये तजुर्बे होते हैं. ये तजुर्बे होते हैं. आप अगर आप खुशकिस्मत हैं और आपके अंदर एक वो आप सलाहियत रखते हैं मतलब you have the ability to hold that shahur, then consider yourself a very lucky guy. Our problem in our society is that maybe 9/10 of our society has loads of knowledge of Abdullah. Loads of maybe knowledge. A little too much. Yeah, but have absolutely no wisdom. Yeah. It's like riding a horse without a whip.
even deeper. We are sinking We are deeper, going into a deeper, कुआं. बिल्कुल नीचे गिर गए It is falling into a कुआं. बहरहाल इसी नोट पे, Notes. इसी बात पर, इसी मुद्दे पर हम इस शो को समाप्त कर रहे हैं, समाप्त. आज के एपिसोड को Finalize कर रहे हैं शो इसको. का भी नहीं पता, वैसे Finalize. शो का भी नहीं पता, लेकिन हाँ. ये एपिसोड समाप्त हो रहा है आज के Slip of the tongues. ये होता है ना, नॉलेज थी, विजडम नहीं था, विजडम नहीं था ये, या फिर ये विजडम ही था. बहुत ज्यादा विजडम था ये. This बहुत was ज्यादा. the too much the wisdoms. Anyhow, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. Thanks for listening to us. I hope you enjoyed our show, even though it wasn't very entertaining. Wasn't today. very entertaining. लेकिन कभी कभार we have to step outside the box. Yep. Of our comfort zone. And our comfort zone, and yeah, go to those dark places and dark, वो जो तल्ख हकीकतें हैं, हकीकतें, उनको ये जो तल्ख हकीकत जो है ना, ये हमें रिफ्रेश करते हैं. हाँ, it's good for the heart and the soul. It is. Take care. We'll be back, same place, same time, and बस आपसे गुजारिश है कि दुआओं में प्लीज हम दोनों को खास करके मुझे याद रखिएगा. मुझे भी आमीन आमीन. Burning bush.